For the latest film interviews, reviews, and everything making news in pop culture, subscribe to Film Companion now. मुझे अफसोस है इस चीज का कि मैं मेरी बहन की शादी में सिर्फ 5 मिनट रुका। मेरी शादी में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया हो, जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस किया हो, वहाँ मेरे हेयर मेरे मुंह पे आ जाते हैं। रूही, फैजू, वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। और मेरा जो शो है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड स्पिल द टी। सो आर यू गाइज रेडी टू स्पिल द टी विद स्नेहा? Yes, we are. Yay! Congratulations on Bang Bang that's coming out on Alt Balaji. It already has 30 million views. लेकिन मुझे जो strike किया were the 50,000 comments on that trailer. मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं, but people are definitely engaging with your trailer. What have the past couple of days, आप लोगों के लिए, how have the past couple of days been? Love us or hate us, you can't ignore us. I'm so glad that people are watching our trailer, talking about it, talking about the teaser. And it's been really exciting. We've worked really hard for the past few months, and I'm really now looking forward to the release and the response. Well, it is Mr. Faizu's debut on the OTT. Ruhi, I'm sure you will agree with me. While you are the lead of the film and Faizu is the hero, there is a third character in this film which has really got the internet talking, and that is Faizu's hair. I think it deserves to be a character in itself. It does. और ये राज क्या है आपके बालों के पीछे? It literally defies gravity. जो चीजें आप करते हो अपने बालों के साथ, what is the secret? सीक्रेट और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताता हूँ हेयर से भी होती है। मतलब जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया हो, जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस किया हो, वहाँ मेरे हेयर मेरे मुंह पे आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ हम लोग ने, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब लास्ट डे शूट कर रहे थे, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट डे पनवेल में हम लोग शूट कर रहे थे एक्शन सीक्वेंस का। इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस में, मतलब इतना अच्छे एक्शन हुए थे, और उसमें जब मैंने जाके देखा तो देखने में ना एक्शन तो बहुत अच्छा हुआ, एक्सप्रेशन भी सब कुछ आया, मगर सारे एक्शन में मेरे मुंह पे बाल आ गए। तो मैंने पूरा स्प्रे करवा के पूरे बाल पीछे लिया, फिर जाके किया। Did you find, Ruhi, that your hero was taking more time to get ready because of this situation that he has going on? No, not at all. He never took any time. Right answer. मुझे सच में मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगता है या 25 मिनट्स लगता है पूरा कॉस्ट्यूम के साथ में हेयर मेकअप करके रेडी होने। Amazing. The two of you particularly enjoy like so much fame on your social media handles, खासकर for the 15-second and 30-second videos that you make. But now जब आप long form content करते हो, what are the challenges of it? मतलब लोगों की जो attention span है उसको बरकरार रखने में और effort लगता है. What have you guys figured? बहुत ज़्यादा efforts लगते हैं, और अगर 15 सेकंड के कंटेंट की बात हो तो 15 सेकंड के कंटेंट में डबिंग होती है, जो कि हमें याद करके डब करना पड़ता है। मगर रही बात अगर वेब सीरीज की, तो ये पूरा रियलिस्टिक है। पूरा आपको आपका कैरेक्टर शो करना पड़ता है, आपको पूरा उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है, और डायलॉग डिलीवरी वो भी आपके साउंड की होती है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है और मेरे लिए। But you know, Ruhi, you have been an actress. You've also starred in films like Calendar Girls, Ishq Forever. I want to understand from you, what have the challenges been for you to, you know, just break into the big league, to make the big guys take notice? What has that been like for you? Being a Miss India and coming from the pageant background, and then breaking, you know, like my first break was Calendar Girls, an award-winning director, Madhur Bhandarkar. I was pretty excited about that. And then all I can do, you know, is present myself well, because that's the only product I have, which is me. I do not belong to the film industry. Nobody from my family, like I did not know anyone. So I have made it till so far on my own. There are always ups and downs, and there are so many comments out there. There are people with hundreds of opinions telling you, if a film works, they tell you, oh, very good, you know, well done. If a film doesn't work, they come to you and tell you, अरे ये क्यों किया आपने? So my question to those same people is, आपने तो मुझे नहीं दे रहे थे आप कुछ, तो जो मेरे को मिलेगा उसमें से my job is to, you know, make full use of the opportunity and give my best, और वो ही मेरे कंट्रोल में है और वही मैं कर सकती हूँ।
No, absolutely. And you spoke about support. And Faizu, I want to understand from you, ये जो social media fame है, what is the nature of that? For instance, आपने जो you were easily one of the most popular stars on TikTok. कुछ 30 million followers थे आपके. And आपने इतना जो time, energy, mind space सब जो invest किया ये brand Mr. Faizu बनाने में, and literally overnight वो app ban होगी. तो what were the challenges of that? आपने वो phase को कैसे handle किया? मैंने इग्नोर किया सारी चीज़ों को, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि उस वक्त अगर मैं उस चीज़ में रह जाता तो मैं उसी चीज़ में रह जाता, मगर मैंने पूरी पूरी तरीके से उस चीज़ को इग्नोर किया और खुद को एकदम माइंड सेट कर लिया खुद का कि मतलब अभी और इससे ज़्यादा करना है। तो मैंने मेरी फीड को उस तरीके से ग्रूम किया जो मेरे आगे के प्रोजेक्ट में काम आए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने डांसिंग वगैरह में मतलब मैंने इतना अपडेट नहीं दिया था, मगर उसके बाद मैं डांस वगैरह भी करने लग गया, फिर उसके बाद मैं एक्शंस वीडियोस बनाने लग गया, जो कि बहुत हेल्प होती है वो सारी चीज़ों से भी। तो वो सारी चीज़ों का मैंने अपडेट देना शुरू कर दिया, तो मेरे को आगे के प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मिलने लगे। इंटरेस्टिंग। क्या ये सच बात है कि मुझे सुनने में आया कि यू कुड नॉट अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग बिकॉज क्राउड इतना हो गया था कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी खुद की बहन की शादी में हाँ, ये तो सच है। मेरी बहन की शादी में मैं गया था और इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि मैं उससे सिर्फ 10 मिनट भी नहीं मिला, मैं सिर्फ 5 मिनट मिला था उससे। सिर्फ सलाम दुआ हुई, मैं उसको बोला कि देख तू खुश है ना, तू खुश रहना, ये वो बोल के बस मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि जितने भी लोग शादी में आए थे, एक तो रिलेटिव्स हैं जिनको मैं मना नहीं कर सकता हूँ फोटोज़ वीडियोज़ के लिए, प्लस बाहर के जो लोग थे, जो फैन्स थे, मैं उनको भी मना नहीं कर सकता था फोटोज़ वीडियोज़ के लिए। मगर क्राउड इतना ज़्यादा हो गया था और शादी के माहौल में तो बहुत सारा क्राउड आता ही है। तो इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि मतलब मैं खुद मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो 5 मिनट में मैं निकल गया वहां से। तो मुझे अफसोस है इस चीज का कि मैं मेरी बहन की शादी में सिर्फ 5 मिनट रुका। मेरी शादी में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Amazing. You know, I want to ask both of you, ये जो social media fame के साथ रूही, you are sitting on millions of followers yourself. There's a certain relatability करके, मतलब लोगों को लगता है कि अगर आप लोग कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते. But when you move to a time, Faizu, Ruhi, you as well, when you start posting fancy cars, foreign locations, आपको कभी डर सा लगता है कि वो आपको लोगों से alienate कर सकती है? फैजू, सब मतलब all of your fans know आपका जो जर्नी था from a salesman to a superstar now. आपको कभी लगता है कि oh my god, will they feel कि मैं बदल गया, अभी मैं वो फैजू अभी नहीं रहा? ये चीज का डर है ना, मुझे हर वक्त आता है। जब मैं सुबह सो के उठता हूँ या सोने जाता हूँ तभी भी आता है, और ये चीज का मुझे डर हमेशा से, मगर मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं किया जो ये कभी सोचे कि फैसू बदल गया है। और इस चीज का मैं अपने दिल में भी डर रखता हूँ और अपने दिमाग में भी डर रखता हूँ, और हमेशा मैं उनके रिव्यू लेते रहता हूँ कि मतलब उनको कोई ऐसी चीज मेरी ना लगे कि मतलब मुझ में कोई ऐसी चीज आ गई जो उसे कहते हैं घमंड, जो उन लोग को ऐसा लगे मुझ में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा से उन लोगों की तरफ से मेरे को पॉजिटिव रिव्यू आया है, पॉजिटिव प्यार ही आया है, तो बस। क्या आप दोनों को लगता है that it's essential also to be present in all of these platforms so that the noise is amplified and सबको पता चले कि आप लोग क्या रहे हो अभी? मेरे हिसाब से तो सारी चीजें, मेरे हिसाब से तो सारे प्लेटफॉर्म पे अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग हो गया है और लोगों को बहुत पसंद है बिहाइंड द सीन देखना। लोगों को बहुत पसंद है कि मतलब ये ऑन स्क्रीन से हट के ऑफ स्क्रीन बंदा भी कैसा है। तो ऑफ स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो वो भी एक तरीके का ऑन स्क्रीन ही हुआ सोशल मीडिया, मगर उसमें जो चीज हम ऑन स्क्रीन में बड़े प्रोजेक्ट में नहीं दिखा सकते, वो हम छोटे स्क्रीन में दिखा सकते हैं कि हमारा नेचर कैसा है, और लोगों को जानने की इच्छा भी होती है। Ruhi, what was it that surprised you most about Mr. Faizu's stardom? Because it kind of hits you, right? When you suddenly get the tags and the fans and the armies that come. So, honestly, the first ever social media star or sensation that I've worked with is Mr. Faizu. और हमने कुछ प्लान भी नहीं किया था वीडियोस बनाने का या कुछ भी। हम डायरेक्टली फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मिले थे, मांगी दुआ, और रूही अपने ब्लॉग के साथ में आई थी। मैं नहीं थी। Yeah, I was just so new on YouTube. मगर बहुत अच्छी बात है ना कि मतलब तुम सारी चीजें जान रही हो कि मतलब क्या होता है, कैसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोशल मीडिया में अपडेट रहने के लिए, जो कि रूही
अच्छा कर रही है इसमें। He's taught me a lot. So yes, so when I actually met him, and the first ever, I think the only social media sensation that I've ever worked with is him. And so it was pretty interesting for me to suddenly be blasted with all of these. We've got Fairu fans, which is Faizu and Ruhi, and they're so loyal and they're so sweet and so nice, you know. And I think the relatability is a lot more than for social media stars with the audience, because again, real time. You know, they know Faizu as a person. They love him as a person. They love me as Ruhi. And instead of just a character that we've played, which is also great simultaneously, but there's a lot more, relatability in terms of this. फैजू आप लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हो? मतलब आपने बोला बिहाइंड द सीन्स लोगों को पसंद है देखने पे, ऑफ कोर्स वी लव टू सी ऑल ऑफ दैट, लेकिन आपके लिए आप क्या रखते हो? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन जहाँ ये मैं पोस्ट नहीं करूंगा? तो वो पर्सनल में भी पर्सनल है, वो है मेरी माँ, जो कि मेरी मम्मी बहुत अलग मिजाज की है सोशल मीडिया को लेके। मतलब मैं उन्हें बहुत बार बोलता हूँ कि मम्मी चलो मेरा ये इवेंट है, मम्मी चलो ये शूट है, बाहर चलो, तो मम्मी कहीं आती नहीं है। मम्मी बहुत पर्दा करती है, तो उनके पर्दा करने से फिर मैं भी कुछ नहीं बोलता, मैं भी बोलता हूँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप करो। बाकी मेरा तो सोशल मीडिया पे उठना बैठना खाना पीना सारी चीजें अपडेट है। And finally, since the both of you are such big experts at viral videos, if I were to give you 30 seconds to tell people कि वो Bang Bang क्यों देखे 25th को, what is it that you will do? You have 30 seconds and your time starts now. So guys, Bang Bang आप लोग इसलिए देखो क्योंकि अगर ये एक्शन, अगर आप सोच लो कि पूरे इसमें एक्शन है, तो एक्शन है, 80% एक्शन है, मगर मैं आपको बोलना चाहूंगा इसमें स्टोरी है, जो स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। और स्टोरी भी ऐसी है कि मतलब आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि अरे अब के बाद अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो ये बहुत मजा आने वाली है आप लोगों को। Also guys, बहुत important बात ये है कि ये शो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के पॉपकॉर्न लेके कोल्ड ड्रिंक लेके एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही क्लीन। Time out. मैं तो बोलती हूँ फैजू, just do one of your things with your hair and people will be sold. Thank you guys so much for chatting with me. Hey guys, Faizu here. Hi guys, it's Ruhi Singh. If you guys like the video, Subscribe to Film Companion.